Uh, you have also completed 12th. So you are also trying for, this NLU. Or you have already taken a first attempt, you have taken. Acha, yes, this is your first attempt. Yes, my friend, what's your good name? Sumit Kumar. Yes, Sumit, are you ready with your preparation? This is your first attempt, you see. Yes, what's your good name? Eh? Anshu, Anshu, what are you doing at present? You are in 11th class, you see. Very good. Then sky is the limit for you. तब तो आपके लिए दुनिया पूरा खुला हुआ है ना, बिकॉज यू आर इन द 11th क्लास. यस, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? यस, व्हाट आर यू डूइंग? 12th का एग्जाम दे रहे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. सो यस, निशिका, यस, व्हाट आर यू डूइंग? You are preparing for CLAT, you see. Yes, please, all those who are, staying outside, please tell them to come inside immediately. Yes, Ansu, you see, this is VK Sinha. On demand, on pressure, I have taken the class, you see. I have just agreed to taking, yes, come in, please sit down. This is VK Sinha. I have been taking for the last, you see, 10 years current affairs, you see. For the last 10 years, you see, in judiciary, you see. And I have been asked to take a few classes only. That is from Monday to Friday. From Monday to Friday, obviously plus minus 1 day. And from Monday to Friday, certain, issues, certain topics or issues which are actually, I personally feel important for both the law entrance exam and CLAT also, common law admission test also, you see. You can see I have prepared. Altogether, there are 32 topics, you see. And most of you must be knowing also. Let us see to what extent, you are knowing, कहाँ तक आप लोग इसको समझ रहे हैं और in short, you have to understand. Planning कुछ इस तरह से है for those who are going to face directly law entrance after doing graduation, you see. उनके लिए तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. For those who are trying to take up common law admission test, उसका passage is 32 topics पर ready हो रहा. Passages, the passages are being ready. It is getting ready. And yes, please come in on time, you see. Please come in on time. Yes, the passages are getting ready. And after understanding the important topics, you see, after going through the important topics, you see, I think you will be able to solve the questions, you see. Passage comprising, Rakdudhar. Passage comprising, certain questions and answer, you see. Certain question and answer, you see. So altogether, there are 32 topics. You kindly see, the first 7 topics, you see. I think you can see from on the board itself, I'm going to take up the first 7 important topics in this connection, you see. Method has been adopted. You might be studying, you might be subscribing certain magazine also.
आप अगर पेपर भी पढ़ रहे होंगे, यू सी माइट बी स्टडिंग पेपर ऑल्सो, आई मीन वन ऑफ द न्यूज़ पेपर ऑल्सो, यू सी, बट लेट अस सी हाउ टू अप्रोच द टॉपिक, यू सी, हाउ टू अप्रोच द टॉपिक, यू सी. You see, the first, the first 7 topics under discussion, the first 7 topics which we are going to take up today, usme the first topic, kindly see the first topic. This is the first topic is Five Eyes Alliance. ये एक्चुअली आप देखिए फाइव आइज अलायंस, यू सी, ये एक्चुअली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू, आई मीन द डायरी ऑफ इवेंट्स. आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इज रिलेटेड टू डायरी ऑफ इवेंट्स इंटरनेशनल है ये, फाइव आइज अलायंस, यू सी. आई मीन लेट अस टेक वन बाय वन, यू सी. इसलिए देखिएगा, I mean, you will find that by the side of the topic, you see, किस head से related है. So this is how you have to, I mean, select the topics, you see. आपको select, जो घर पर select कीजिएगा topics, you have to select the topic under the proper heading, you see. And the proper heading of this first item, number 1, is Five Eyes Alliance, you see. And this is related to diary of events. अरे साल भर का डायरी ऑफ इवेंट्स होता है. दिस इज रिलेटेड टू डायरी ऑफ इवेंट्स. नेचुरली विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट इंटरनेशनल. तो कॉपी में जब आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, डायरी ऑफ इवेंट्स इंटरनेशनल कौन सा है. तो लेट अस, आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट, स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शुड आई स्पीक इन हिंदी ऑल्सो? यस, टेल मी फ्रैंकली, शुड आई स्पीक इन बिटवीन हिंदी ऑल्सो? तो देखिए पहला जो टॉपिक है ना, वो है ना 5 आँख संबंधी अलायंस, यू गठबंधन. आई मीन इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड फाइव आइज अलायंस. वैसे यू आर गोइंग टू फेस द क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू से. मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो हम लेते आ रहे हैं हर एक वीक में, I don't take classes for you people, but then on special, I mean request I am taking, you see. The first item, पहला जो आइटम है उसका नाम है, आप कॉपी ओपन कीजिए, कॉपी ओपन करके सामने रखिएगा. फर्स्ट जो आइटम है वो है फाइव आइज अलायंस, यू सी. तो अब इस पर पॉइंट बनाइए, यू सी. आई मीन लेट अस सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अब इसी पर पैसेज रहेगा आपका. पहला पॉइंट तो ये है, आई मीन दी फर्स्ट पॉइंट, सो अकॉर्डिंगली आप उसके अनुसार अपने कॉपी में दर्ज करें. डायरी ऑफ इवेंट्स ब्रैकेट में आप लिख दें इंटरनेशनल. नाम है टॉपिक का फाइव आइज अलायंस. बोर्ड पर देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए. तो अंडर दिस हेड, अंडर दिस, इस आइटम के भीतर पहला पॉइंट तो यही है. सो यू हैव टू, आई मीन नोट इट डाउन पॉइंट वाइज, यू सी. पहला पॉइंट तो ये है दैट दिस फाइव आइज अलायंस, इसका एक्रोनिम है, इसका शॉर्ट नेम है ना. आप शॉर्ट नेम ब्रैकेट में लिख सकते हैं. इसका शॉर्ट नेम है कैपिटल लेटर में FV/EY.
इसका एक्रोनिम है, एक्रोनिम मतलब इसका शॉर्ट नेम है FV/EY एंड ऑब्वियसली पहला जो पॉइंट है वो ये है दैट दिस 5 आइज अलायंस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। इसका एक्चुअली पहला पॉइंट तो यही है दैट दिस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग। आप अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करेंगे दिस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंटेलिजेंस यू अंडरस्टैंड है ना, सीक्रेट, आई मीन सीक्रेट इंटेलिजेंस। दिस इज अ I mean intelligence sharing alliance. Yes, come forward, sit down here. Yes, this is an intelligence sharing alliance. And this is the first point, you see. The second point is that this was established after, I mean, the Second World War. This alliance was established, and this was established after the Second World War. After the Second World War, you see, in the year 1946, under the UK-USA agreement, in the year 1946, under the, please help her, yes, please help her, she has come late, बताइएगा इनको, है ना। And so this was established after the Second World War, bracket में 1946, है ना, under the UK-US agreement, under the UK-US agreement, and thereafter, third point ये होगा, thereafter three more countries became parties /signatories, मतलब उसमें हस्ताक्षर किया है। 3 more, I mean important countries, 3 more important, 3 और देश इसमें है ना हस्ताक्षर, they became parties/signatories to, है ना, this parties/signatories to this multilateral treaty। मल्टीलेटरल ट्रीटी कहते हैं लार्ज स्केल जब एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर लार्ज स्केल जो एग्रीमेंट होता है उसको मल्टीलेटरल ट्रीटी कहते हैं। और इसमें जो 3 पार्टी आई मीन जो जुड़े हैं उसमें नाम नोट कीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, दिस अलायंस, ये अलायंस तो आप समझ रहे हैं। दिस अलायंस इज इंटेंडेड, इसका पर्पस है, दिस अलायंस इज इंटेंडेड, दिस अलायंस इज इंटेंडेड, यस माय फ्रेंड, उनको जरा मदद कीजिएगा जो छूटा है। दिस अलायंस इज इंटेंडेड आप लिख दें, है ना, एज अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट, ये एक तरह का कोऑपरेटिव है ना अरेंजमेंट है ना। एक आप इसको हिंदी में कह सकते हैं एक सहयोगवादी है ना व्यवस्था की गई है। इट इज़ अ I mean intended as a cooperative arrangement for sharing signals alliance, you see, for sharing signals intelligence, for sharing signals intelligence। naturally signal intelligence को नीचे एक एंगल देके लिखिए। सिग्नल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, you see, सिग्नल इंटेलिजेंस का मतलब, तो मतलब को आप नीचे लिख दीजिए।
Signal intelligence is a branch of military intelligence. It's a branch of military intelligence. It's a branch of military intelligence which is concerned with monitoring. You understand, monitoring का मतलब हुआ to monitor, है ना. Concerned with monitoring, interception and interpretation. It is concerned with monitoring, and please come on time, my friend. It is concerned with monitoring, interception and interpretation. It is concerned with monitoring, interception and interpretation of radio and radar signal communication. Radio and radar signal communication, you see. सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज तो चारों तरफ अपना अपना रहता ही है. ये कॉम्बाइंड है जिसका नाम है फाइव आइज अलायंस. इसी को नाम दिया गया है फाइव आइज अलायंस, यू सी. तो क्वेश्चन ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन आई मीन दैट कम्स फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन. क्वेश्चन अब ये उठता है कि व्हाई दिस वाज इन न्यूज. तो आप लिखिएगा ना, आखिर समाचार पत्रों में ये है ना समाचार का व्हाई दिस वाज इन न्यूज, यू सी. यस, व्हाई दिस वाज, व्हाट इज दिस. ये टॉपिक रख लीजिए, व्हाई दिस वाज इन न्यूज. उसको रखिए, बाद में देखिएगा. Why this was in news? तो can anybody can tell me, you are studying for passage current affairs, you see. और एक नहीं, शायद मैं समझता हूँ 3-4 पैसेज रहता है. तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पैसेज करंट अफेयर्स. तो मेरा क्वेश्चन है कि वाई दिस वाज इन न्यूज. आई मीन द टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट, यू सी. फाइव आइज अलायंस, यू सी. वाई दिस वाज इन न्यूज. यस माय फ्रेंड, कैन यू टेल मी. घर पर अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. Work like a horse, you see. NLU में कहीं पर लटक जाए ये मत रखिए. कोई NLU में हम लटक जाए किसी तरह से, you see, ये मतलब you are gone. Your aim should be to get through in Bangalore NLU, ताकि वहां से निकले तो हमको 15 लाख का पैकेज मिल जाए. And for that, you see, you have to command, comprehension passage and current affairs passage. GK बड़ा strong करना होगा आपको. GK also includes static GK also. एक नमूना हम स्टैटिक जीके का इन कोर्स ऑफ डिस्कशन आई विल गिव यू. बट द प्रेजेंट क्वेश्चन इज, एक आध दिन डिले होगा तो सैटरडे को भी आप आ सकते हैं ना, है ना. क्योंकि 32 ऑल टुगेदर देर आर 32 टॉपिक्स. हो सकता है कुछ और इंक्रीज हो जाए. मेरा काम बड़ा प्रॉपर अरेंज्ड काम होता है. फॉर यू आई स्टार्टेड माई वर्क डे बिफोर यस्टरडे.
हमको जरूरत नहीं थी, बट आई स्टार्टेड माई वर्क डे बिफोर यस्टरडे, आई गॉट इट टाइम्ड, यू सी, ताकि घर पर आप देखें, आई मीन यू शुड ऑल्सो आई मीन वर्क हार्ड। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, वाई दिस वॉज इन न्यूज। तो आप यहां पर इस बात को एक पॉइंट के रूप में लिख दीजिए, दिस वॉज इन न्यूज, आई मीन आप यहां पर लिखिए दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, नाम सुनो, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आई मीन जस्टिन ट्रूडो, नाम सुने होंगे, एक नंबर का बदमाश आदमी है ना, जस्टिन ट्रूडो, TREDEAU, आई मीन जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने जितने खालिस्तानी जो आई मीन टेररिस्ट लीडर हैं उसको पनाह दिए हुए वहां पर। सो दिस वाज इन न्यूज बिकॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आई मीन द ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो अक्यूज्ड इंडिया, भारतवर्ष को ब्लेम किया उसने, अक्यूज्ड इंडिया आई मीन एन अक्यूज्ड इंडियन हैंड्स, कहा कि ये भारतवर्ष का हाथ है, अक्यूज्ड इंडियन हैंड्स इन द असैसिनेशन ऑफ, असैसिनेशन यू अंडरस्टैंड, असैसिनेशन का मतलब समझते हैं, असैसिनेशन का मतलब समझते हैं, असैसिनेशन का मतलब आप समझते हैं, यस क्या है उसका, हत्या। In the assassination of, I mean, खालिस्तानी लीडर, the assassination of खालिस्तानी लीडर, नाम नोट कीजिए ना, इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर। As per the report of, as per the report of, as per the, एक एक करके आता है सब, that is why they miss, you see. As per the report of, yes please sit down immediately, my class 10 means 10, so for the last time in 20 years अगर 10 बजे क्लास है तो हम 10 बजे के पहले प्रेजेंट रहते हैं। You have to be serious, you have to be, I mean, develop, you see, and you have to, I mean, develop a good habit, because good habit will make your character, and character will lead to destiny. तो कहता है कि है ना, ब्लेम किया, as per the report of, as per the report of Five Eyes Alliance Intelligence Network, as per the Five Eyes Alliance Intelligence Network, so it was in the news, you see. Five Eyes Alliance Network, so it was in the news, you see. तो कल इस पर पैसेज बनेगा तो नेचुरली करीब करीब 5-6 क्वेश्चन रहेगा, 5-6 क्वेश्चन रहेगा, तो नेचुरली न्यूज में क्यों आया, आई मीन ये भी क्वेश्चन रहेगा। आज आप अगर इफ यू हैव आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई मीन द सब्जेक्ट मैटर इन ब्रीफ, अगर आप विषय वस्तु को है ना आप समझ लेते हैं, क्लास में अगर आप समझ लेते हैं, यू सी, जीके पर कोई ध्यान थोड़ा ही देता है, जुडिशरी में भी वही हाल है, लेकिन नाउ दे आर सीरियस। जीके आपको लीड कर जाएगा, आपको जीके लीड करके ले जाएगा टॉप एनएलयूज में। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं। You see, I am a student of constitutional law. For the teaching constitutional law to IAS and I mean judiciary for the last 20 to 25 years.
बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा टॉपिक है जो आप नहीं समझते होंगे. You won't be able to understand some of the important कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ संवैधानिक शब्दावली है जो शायद आप नहीं जानते होंगे. तो एक तो पैसेज इस पर रेडी होगा. सेकेंड टॉपिक देखिए, तो सेकेंड टॉपिक, नाउ कम टू सेकेंड टॉपिक. देखिए सेकेंड टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस. इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में देखिए इसमें 23, 24 और ब्रैकेट में 22 भी लिख लीजिए. 23, 24 और ब्रैकेट में 22 भी आप लिख दें. कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं, एक्चुअली आप देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हो गया, मिसलेनियस न्यूज़ आइटम हो गया, छोटा छोटा न्यूज आइटम. इसी को हम लोग कहते हैं मिसलेनियस न्यूज आइटम. यूसी पहला जो ऑपरेशन है वो उसका हेडिंग है ऑपरेशन कावेरी एंड सूडान क्राइसिस. पहला जो ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, that is headed by, the title is ऑपरेशन कावेरी एंड सूडान क्राइसिस. यू सी सूडान में क्राइसिस होता रहता है, कन्फ्लिक्ट चलता रह रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रही हो? बताओगे जहाँ दिक्कत होगा तो यू मस्ट टेल मी, डोंट हेजिटेट. यू सी ये डेट है अप्रैल 2023 का. अप्रैल 2023 द इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको. दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी. द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट, है ना, वहाँ से खाली किया गया है. To evacuate 3000 Indian citizens. 3000 इंडियन सिटीजन्स को आप अपने हिसाब से लिखें. 3000 इंडियन सिटीजन्स इन सूडान. यू सी एक्चुअली सूडान इज फेसिंग अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट. सूडान इज फेसिंग अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट between the country's army on the one hand, देश का जो आर्मी है उसमें between the countries में apostrophe s लगाइएगा, between the country's army on the one hand and the paramilitary group, और एक paramilitary group हो गया, और एक पारामिलिट्री ग्रुप हो गया जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स. पारामिलिट्री ग्रुप का नाम है ना रैपिड सपोर्ट फोर्स, है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्स विच रिजल्टिंग इनटू, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इनटू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स. तो मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स हुआ तो नेचुरली हम भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उनको बचाएंगे ना. मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स. यू सी मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स, ये हो गया ऑपरेशन कावेरी. तो कुछ ऑपरेशंस पर पैसेज होगा. सेकंड, दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय. सेकेंड जो ऑपरेशन है इसलिए हमने देखिए उसमें लिखा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस. दी सेकेंड वन इज ऑपरेशन अजय. ऑपरेशन अजय, दिस इज ऑल्सो ब्रैकेट में आप लिखे 2023. देखिए क्वेश्चन जो आएगा आपको, है ना, वो 23, 24 को कवर करेगा. क्वेश्चन जो भी आएगा वो 23, 24 पर पैसेज बेस्ड होगा. यूसी
launched by India. Naturally इसको कौन लॉन्च किया? This was launched by India. लॉन्च समझते हैं ना, है ना? This was launched by India, you see. India, है ना, to bring back Indians, है ना, भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की गई. To bring back Indians, you see. To bring back Indians from Israel, you see. चल रहा है इज़राइल, आप देखिए इज़राइल, है ना, to bring back Indians from Israel due to, I mean, serious conflict between, due to serious conflict between Israel and Hamas, you see. तो यहाँ पर नेचुरली नोट में ये बात आएगा. मान लिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम पूछ देंगे पैसेज में, व्हाट डू यू मीन बाय हमास, तो नेचुरली किसी तरह से क्वेश्चन हम पैसेज में पूछ सकते हैं. यस, व्हाट इज हमास? यस, स्पीक लाउडर. हमास इज अ कंट्री. Yes, is it a country? Yes, my friend. Yes, what's your name, please? Yes, you. Yes, yes, it's not a country. आप लिखिए हमास is a terrorist and a guerrilla warfare organization. You see, आतंकवादी ग्रुप है. You see, हमास नेचुरली इस पर क्वेश्चन हम पैसेज पर, है ना, हम देंगे. मैंने ऑलरेडी भेज दिया 3200 टॉपिक. यू सी, आई मीन बहुत लिमिटेड स्केल पर है. हालांकि क्लास कम से कम 10-15 दिन होना चाहिए. तो लिमिटेड स्केल पर हमको करना है, जो हम करेंगे. रेस्ट अपॉन यू. आप देखिएगा, तो हमने तरीका आपको बता दिया है. यू सी, नेचुरली हमास इज ए टेररिस्ट, एक आतंकवादी ग्रुप है. इसलिए देखिएगा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, है ना, क्या नाम है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का? है नरेंद्र दामोदर दास मोदी. यू सी, इसलिए देखिएगा भारतवर्ष के जब इजराइल पर निहत्थे लोगों पर, आई मीन, कत्लेआम हुआ, जब कत्लेआम हुआ उनका हमास के, आई मीन, टेररिस्ट ग्रुप द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उसका, है ना, उसकी निंदा की है. मैं आतंकवादियों के फेवर में नहीं हूं. ठीक है, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनका एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए. जैसे इजराइल का है, वैसे पैलेस्टीनियन लोगों का एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, है ना. भारतवर्ष का 2 स्टैंड है, आप समझ लो. आतंकवादी ग्रुप को किसी भी रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. I mean, we just cannot, I mean, we just cannot afford to, I mean, accept the activities of, I mean, terrorist group, you see. और पूरे विश्व में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, पूरे विश्व में सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो सबसे जो डेडलीस्ट यू अंडरस्टैंड, खतरनाक, वो है ISIS. नोट कर लीजिए. द डेडलीस्ट, आई मीन, टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड इज ISIS. ISIS. लेकिन भारतवर्ष इस बात को भी सपोर्ट करता है. आप समझ लीजिए, पैसेज में यू सी, पैसेज आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस इन पैसेज. पैसेज को तो आपको 1 मिनट में पढ़ के आपको समझना होगा. तो मान लिया, फर्ज करो तुम्हारा बैकग्राउंड है कुछ,
तब तो 1 सेकंड 2 सेकंड में समझ जाओगे, तब क्वेश्चन को पिन पॉइंटेड आंसर दे दोगे। तो भारतवर्ष का जो स्टैंड है, एक तो स्टैंड ये है कि आतंकवादी ग्रुप को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और दूसरा स्टैंड ये भी है कि पैलेस्टीनियन का सेपरेट होमलैंड अपना होना चाहिए। इसलिए देखोगे एक तरफ उसने आतंकवादियों हमास ग्रुप की निंदा की, और दूसरी तरफ जो पैलेस्टीनियंस निहत्ते जो नरसंहार हुआ है ना, उनको बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड भारतवर्ष ने किया, मेडिकल सर्विसेज, फूड सर्विसेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू सी, प्लीज बताइएगा। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू सी, you have to get my point, you see. इंग्लिश चूंकि माध्यम है ना, इसलिए बीच बीच में हम इंग्लिश बोल दे रहे हैं, क्योंकि माध्यम अंग्रेजी है। अंग्रेजी का वर्ड आपको जानना होगा, लेकिन समझ लीजिए आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो ये हो गया ऑपरेशन अजय। तीसरा है ऑपरेशन दोस्त, ये भी 2023 का है। तीसरा है ऑपरेशन दोस्त, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2023। नाम सुने होंगे अपने जीवन में कभी, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त एक्चुअली ये जो ऑपरेशन था ना, इट वाज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इसको आप लिखिए, ये जो ऑपरेशन, ये जो अभियान चलाया गया है ना भारत सरकार द्वारा और आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, ये एक्चुअली इट इज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, यू सी। इट इज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, यू सी, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको शुरुआत किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इनिशिएटेड का मतलब पहलपन, was initiated by government of India, you see, government of India to aid, सहायता करने के लिए, to aid Syria and Turkey, Syria and Turkey after the Turkey-Syria earthquake. Syria and Turkey after the Turkey-Syria earthquake. Syria and Turkey after the Turkey-Syria earthquake. एक earthquake हुआ था, बड़ा मैसिव हुआ था, है ना। कई लोगों का जान चला गया था उसमें, earthquake, और भारतवर्ष इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया, यू सी। अरे ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी छवि को विश्व गुरु के रूप में मेंटेन करने के लिए भारतवर्ष ने बहुत कुछ कर दिया है। देखिए आपके लिस्ट में एक G20 भी है, समिट, जो नाम सुने होंगे अपने जीवन में। तो कहने का मेरा मतलब है ना, ये ऑपरेशन दोस्त हो गया। और लास्ट है आपको दो और है, एक 23-24 का है, दैट इज ऑपरेशन संकल्प। तो एक जगह पैसेज में ये रहेगा, क्वेश्चन बेस जो रहेगा वो एक जगह पैसेज में रहेगा। फॉर दोज हु आर फेसिंग है ना कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, लेकिन जो लॉ एंट्रेंस डायरेक्ट दे रहे हैं उनको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस में ये पूछता है, आपसे तो पूछेगा ही, पैसेज में पूछेगा ही। कितना अवेयर हैं आप, आपको पूछेगा ही, यू सी। आप यहां पर देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। ये है इंडियन नेवीज, नेवीज को अपॉस्ट्रोफी एस कर दीजिएगा, इंडियन नेवीज
सक्सेसफुल ऑपरेशन, इंडियन नेवी का इशू, इंडियन नेवीज को अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, इंडियन नेवीज सक्सेसफुल ऑपरेशन अगेंस्ट सोमाली पायरेट्स। यू सी, पायरेट्स समझते हैं ना, समुद्री डाकू है ना, सोमालियन सब समुद्री डाकू में पारंगत होता है। सोमाली पायरेट्स एंड इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। आप वहीं पर लिख दीजिएगा, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन कॉम्बैटिंग, उससे लड़ने का एक बहुत बड़ा मिसाल पैदा किया। इन कॉम्बैटिंग माइल्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मतलब एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया, है ना। इन कॉम्बैटिंग मतलब उससे लड़ाई किया, संघर्ष किया। इन कॉम्बैटिंग पायरेसी ऑन द हाई सीज। देखिए यहां पर एक वर्ड है हाई सीज। अब हम अगर पैसे सेट करेंगे तो हम, है ना, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को अटैच कर देंगे क्वेश्चन में। जैसे उदाहरण के तौर पर, है ना, जो हमारा ओशन समुद्री भाग है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। और अक्सर ये क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है। पहला है ना 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये आपको जो कोस्टल स्टेट है ना, कोस्टल स्टेट, यू अंडरस्टैंड, कोस्टल, है ना, भारतवर्ष में कोस्टल स्टेट कौन कौन है? कोस्टल स्टेट मतलब समुद्र के किनारे। तो मान लिया क्वेश्चन पूछेगा विच इज दी लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट, तो क्या मारिएगा? स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। तो पहले आंध्र प्रदेश था, अब है गुजरात। जो एक्स्ट्रा बोलेंगे उसको साइड में नोट कर लीजिएगा। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट के रूप में गुजरात है, साइड में मार्जिन छोड़ के रखिएगा। समझ रही है? और कह रहा है कि करीब 22 से 23 किलोमीटर कोस्टल स्टेट का जो बेसलाइन है, उसका जो बेसलाइन है उसमें 12 नॉटिकल माइल्स वो टेरिटोरियल, वो इट इज अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कोस्टल स्टेट। उस स्टेट का वो पार्ट है, टेरिटोरियल पार्ट है। कहाँ तक? उसका रेंज दिया गया 12 नॉटिकल माइल्स। ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स baselines. Are you getting my point? You see, from its baseline, you see. तो इस पर तो हमारी 12 नॉटिकल माइल्स 22-23 किलोमीटर तक मेरी संप्रभुता है, वहां पर भूभागीय संप्रभुता है। दूसरा जो डिवीजन है वो है 200 नॉटिकल माइल्स, ये साइड में लिखिएगा। दूसरा जो जो दूसरा जो आपको, है ना, आपको जो डिवीजन है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स जो करीब करीब 370 किलोमीटर है कोस्टल स्टेट से। इसी को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। आप लिख दीजिए, ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है ना, विच इज 317 किलोमीटर, 70 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल बेस। इसी को हम लोग, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं।
एंड दिस वाज डिफाइंड बाय, और इसको परिभाषित किया गया था। दिस वाज डिफाइंड बाय, नेचुरली आप यहाँ पर लिखेंगे दिस वाज डिफाइंड बाय 1982, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट अनकेशा, अनुज, चंद्रा, बबीता, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू सी, Babita, please tell me. Anuj, Chandra, Ankesha, please tell me, are you getting my point? Are you getting my point? इसी पर ना पैसेज बेस्ड होगा और इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यस यस, बताइए, इज इट क्लियर? यस सर, वेरी गुड। तो दिस वाज डिफाइंड, आप लिख दें, है ना, दिस वाज डिफाइंड अंडर, है ना, इसका नाम है, इसका नाम दीजिए, दिस वाज डिफाइंड अंडर 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको अंडरलाइन करोगे, इसको शॉर्ट में हम लोग अनक्लॉज कहते हैं ना, कैपिटल लेटर में UNCLOS ब्रैकेट में कैपिटल में लिख दीजिए, दिस इज नोन एज अनक्लॉज। फिर से, है ना, 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इन विच the country retain, यहां तक कंट्री रिटेन करता है, in which the country retain, in which the country retain exclusive right, exclusive rights to exploration, यहां तक आप, है ना, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, है ना, रिटेन, इन विच द कंट्री रिटेन एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव मतलब एकमात्र अधिकार होता है, एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, यू सी, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब किसी चीज की खोज करना, और एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसको यूज करना, आई मीन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, तो नेचुरली ऑफ व्हाट? ऑफ रिसोर्सेस। अरे रिसोर्स है ना समुद्र के भीतर भी, रिसोर्सेस को आप देखिए ना, अभी हाल में एक, है ना, श्रीलंकन आइलैंड पर बवाल उठा था अभी हाल में, हमारे प्रधानमंत्री ने, साइड में लिखिएगा, जो चीज एक्स्ट्रा बोल दे उस साइड में, एक हंगामा हुआ था, और उस हंगामा हुआ था एक, आई मीन श्रीलंकन आइलैंड को लेकर, उस आइलैंड का नाम है कच्छाथीवु, जिसको आई मीन मिसेस गांधी के समय में, है ना, मिसेस गांधी का नाम सुने होंगे अपने जीवन में, है ना, कौन थे? आए, मिसेस गांधी कौन थे? मिसेस इंदिरा गांधी का नाम सुने हैं, है ना, कौन है? प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ही इमरजेंसी लगाया था 1975 में, जिसमें सबको बंद कर दिया था, कॉमन आदमी को भी बंद कर दिया था। अभी तो कुछ कुछ आपको अभी बोलता है तानाशाही, तानाशाही का रूप तो हम लोग देखें मिसेस गांधी के रूप में, कि अगर आप एक लाइन दीवार पर लिख दिए मिसेस गांधी के बारे में तो आप जेल। अभी तो कुछ नहीं, उन्होंने इसको दे दिया गिफ्ट के रूप में। अरे भाई, यू कैनॉट सीड योर टेरिटरी,
आप अपने भूभाग को, आपका आइलैंड, ठीक है अनइनहेबिटेड आइलैंड था, ठीक है, दैट वाज अनइनहेबिटेड आइलैंड यू सी। तो इसका मतलब क्या कि हम किसी को बांटते चले। मान लिया किसी का हेड बैरन है ना, बैरन समझते हैं, अगर किसी का हेड गंजा है तो काट दें। अरे दिस इज आवर टेरिटरी, आप सीड, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना करते, आप दे दिए, है ना। और देखिए कितनी बड़ी बात, आरटीआई से ये डिस्क्लोज हुआ, तो नेचुरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा विच इज दैट आइलैंड विच वाज इन द न्यूज, uninhabited island given to Sri Lanka in 1974 by Mrs. Gandhi, you see। तो नेचुरली क्वेश्चन बनेगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और एक पैसेज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट है हाई सीज, ये तीसरा सबसे ऊपर में आइए, हाई सीज, HIGH, हाई सीज। तो यहाँ पर सिर्फ आप लिख दीजिए, है ना, यह जो वाटर कॉलम है ना हाई सीज का, दिस वाटर कॉलम ऑफ द ओशन, दिस वाटर कॉलम का स्पेलिंग जानती हैं? क्या है कॉलम का स्पेलिंग? COLUMN। दिस वाटर कॉलम ऑफ द ओशन, है ना, डैश एन एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इसमें नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये एरिया, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो हम जब पैसेज बनाएंगे, आपको ऑपरेशन संकल्प पर मान लिया कोई क्वेश्चन रखेंगे, तो हम 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या 12 नॉटिकल माइल्स, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें। This is how, and the last one is Operation Ganga. And the last one is Operation Ganga, you see. And the last one is Operation Ganga, that you know, जो आप जानते हैं। Yes, बताइए my friend. Yes, can you tell me? Yes, are you studying seriously? What is your father? Your father is a teacher, you see. And tell your father, tell everybody, your father to meet me. करना है तो निकलना है, और नहीं तो पान का दुकान खोलना है। करना अगर है तो निकलना है, इसी को कसम खा के, क्योंकि जब तक तुम्हारे है ना सीने में लगन नहीं होगा, बेकार है ऐसे जीने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू सी, निकालो, और अच्छे NLU को निकालो किसी तरह से। अगर अच्छे लॉ फैकल्टी को निकालो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ फैकल्टी है बड़ा रिच है, तो जो उसको दे रहे हैं वो उसको निकालें, जो NLU दे रहे हैं वो कोशिश करें कि हम टॉप 3 NLU को पकड़ें। तो उसके लिए GK और इंग्लिश इस 2 पर कमांड होगा। तो आप एज ले लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर कमजोरी है सबको। इट्स अ मैटर ऑफ, यू सी, इट्स अ मैटर ऑफ 1 month ओनली, सॉलिड 1 month, 1 month इन्वेस्टमेंट
on my part will bring about the whole change, you see. तो एक तो ये तो मान लिया करेंट टॉपिक्स को हम लेकर, एक स्टैटिक भी है, एक टॉपिक आपको सेट ऑफ टॉपिक्स है वो स्टैटिक जीके का। तो ऑपरेशन गंगा, I mean a mission has been launched. Last line, mission has been launched. Mission has been launched to evacuate, 2022 का है ये। Mission has been launched to evacuate Indian nationals, to evacuate Indian national। yes, online ठीक जा रहा है, हे बबीता ठीक जा रहा है, अनेक्षा, अनुज चंद्रा ठीक जा रहा है, प्लीज टेल मी। आप तो कम हैं, यहाँ एक एक 100 लड़का के बीच में हम डील करते हैं करंट अफेयर्स, यू सी। तो आप इसको जरा देखिए। यस, तो आप लास्ट में लिखें has been launched to evacuate Indian nationals and a national and stranded at Ukraine। stranded मतलब वहाँ पर पड़े हुए थे, stranded at Ukraine due to stranded at Ukraine due to heightened tension between, है ना, heightened, HIGHTENED, heightened tension between Russia and Ukraine। Russia and Ukraine। yes, एक मिनट ओनली, एक मिनट रिवाइज कीजिए एंड आस्क मी द क्वेश्चन। एक मिनट 1 minute, not 2 minute नूडल्स, 1 minute। आप रिवाइज करके बताइए, इज इट क्लियर? आगे बढ़िएगा। यस, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, 5 कंट्रीज में, एक यूके, यूएसए, और दूसरा हो गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसी को हम लोग 5 आइज अलायंस कहते हैं, सीक्रेट आई मीन इंटेलिजेंस अलायंस कर दिया। इज इट क्लियर? ये 2022 आप लिखिए। कभी कभी पुराना भी पूछ देता है, लेकिन 2023-24 को आपको टारगेट करना है। यस, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बोलिए। ये नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तो बहुत चर्चित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड अगर इसको हम लोग, है ना, आप जरा समझिए। आप तो पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी ने पढ़ाया होगा शायद आपको। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सो आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। एक तो पहला पॉइंट तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हाउ विल यू, जस्ट अ मिनट, पहले समझिए एरिया को।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य आचार संहिता, है ना, ये क्या है? नंबर 1। दूसरा जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान से यह प्रभावित है, यह भी दूसरा क्वेश्चन हो गया। आई मीन, एंड टेल मी द प्रोविजंस फ्रॉम विच इट इज इन्फ्लुएंस्ड। भारतीय संविधान के किस प्रावधान से प्रभावित है? संविधान से तो क्वेश्चन रहबे करेगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ओल्ड केस टाइटल्स एंड न्यू केस टाइटल। ये तीसरा एरिया हो गया। ओल्ड केस, इंपॉर्टेंट ओल्ड केस टाइटल, कौन कौन केस आया इस पर? इंपॉर्टेंट ओल्ड केस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। देखिए, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट, वर्डिक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट जो एरिया होगा वो होगा, आई मीन, उत्तराखंड इन द न्यूज। यही 5 एरिया है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आई मीन, फर्स्ट पॉइंट तो यही आप लिखिएगा, दी फर्स्ट पॉइंट यू शुड राइट। और अपने मन से आप लिखिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड provides for one common law. Uniform Civil Code provides for one common law. Provides for one common law. One common law for entire nation, or region. For entire nation or region, including the various religious communities, dealing with, और ये डील करता है dealing with the subject matter like, और ये डील करता है dealing with the subject matter like marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. You see, अब इससे रिलेटेड है ना, आप जो संविधान किसने पढ़ाया है? संविधान किसने पढ़ाया आप लोग को? यस, कैन यू टेल मी, संविधान किसी ने पढ़ाया है? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसमें इससे रिलेटेड आप देखिए 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आपका क्वेश्चन बनेगा, पैसेज में क्वेश्चन बनेगा। संविधान तो हम यहाँ खटिया बिछा दीजिएगा तो हम सो के, है ना, सुबह बताएंगे और 10 बजे रात को खत्म कर देंगे। इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो इजी, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो कहने का मेरा मतलब है ना, प्लीज काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसमें इससे रिलेटेड, I mean, there are 3 provisions. Yes, my friend, can you throw some light on my mind? मेरे माथा पर कुछ प्रकाश डालिए, है ना, बुड़बक आदमी है हम। है ना, कौन कौन प्रोविजन है
आप जरा सा इसको, मान लिया पैसेज में हम क्वेश्चन कर दिए, तो आपको तो टिक मार्क मारना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें पहला प्रोविजन है ना, पहला जो रिलेटेड डायरेक्ट प्रोविजन है वो है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस माय फ्रेंड, व्हाट्स योर गुड नेम? निशांत, यस यू गॉट द पॉइंट। यू सी, पहला प्रोविजन है आर्टिकल 44। आपका दो सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट ऐसा है जो हम ही जानते हैं कैसे पुटअप करना चाहिए। समय मिलता नहीं है बिकॉज ऑलरेडी क्लास लेके आते हैं। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आई हैव डन, अदरवाइज आई रिफ्यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिफ्यूज्ड। पाऊजा जी ने कहा कि सर कम से कम 5-7 दिन ले लीजिए, एक हफ्ता। The question is not taking the class. The question is whether you are understanding the class or not. You see. तो एक प्रोविजन हो गया आर्टिकल 44। सेकंड, दूसरा जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 14 भी, क्योंकि आर्टिकल 14 आई मीन इंक्लूड्स, आप समझ लो, वैसे तो संविधान में पढ़ोगे है ना, आर्टिकल 14 इंक्लूड्स 2 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। उसमें 2 एक्सप्रेशन है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, शायद सुने होंगे अपने जीवन में। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और दोनों के बीच, दोनों के भीतर एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत पर काम कर रहा है। और सिद्धांत यह है कि like should be treated alike and unlike should be treated differently. You see, मतलब समझो इसको, like should be treated alike and unlike should be treated differently. इसका मतलब निशांत बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम मान लिया, फर्ज करो एक एडल्ट को है ना, एक एडल्ट के साथ एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करवा दें, आए? ये प्रिंसिपल 14 के अगेंस्ट ना होगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड, और जो एक समान है उसको एक समान ट्रीट कीजिए। अरे इसी में जेंडर जस्टिस की भी बात है। और जो डिफरेंट है उसको डिफरेंटली ट्रीट कीजिए। विस्तार पूर्वक तो संविधान में आप पढ़ेंगे, उसको डिफरेंटली ट्रीट कीजिए। बड़ा पेन लेना पड़ता है हमको, एक क्लास के लिए पेन लेना पड़ता है, बिकॉज यू सी हम ऐसे मजाक में क्लास नहीं लेते हैं। मैं 2 बजे से यहां पर हूं। I could have left this place and I mean gone to my home, you see, लेकिन नहीं, हम बोले कि नहीं, हमको इसको जब देना है लड़कों को कम से कम पूरा ग्रिप होना चाहिए। Just you see, I mean just doing the duty is not enough. Duty should be, I mean, associated with accountability. You see, ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? हमारे 1 घंटा का 1.5 घंटा का क्लास है, लेके निकल गए, आप समझे ना समझे? Accountability means, I mean, my purpose, my aim is to give result. Do you get my point? You see, मेरी बात को समझ रहे हो? तो आप यहाँ पर सेकंड 14 दीजिए और थर्ड दीजिए, है ना,
और थर्ड दीजिए आर्टिकल 25(2)A and B। आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है ये, आर्टिकल 25(2)A and B। उतना कोई न्यू कमर नहीं इस तरह से बता पाएगा। यूसी हम तो चूंकि 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरे मुंह पर है ना। आर्टिकल 25(2)A and B, 25(2)A and B एक कंडीशन देता है, स्टेट को ये एम्पावर करता है। क्या? आई मीन इट एम्पावर्स द स्टेट। 25(2)A and B आप साइड में लिख लेंगे, इट एम्पावर्स द स्टेट, स्टेट को शक्ति देता है। इट एम्पावर्स द स्टेट टू रेगुलेट। रेगुलेट करने का मतलब हुआ नियंत्रित करना, है ना। टू रेगुलेट, रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज, टू रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज। अरे भाई, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है जिसमें सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, है ना, अगर एक प्रकार का आचार संहिता होगा तो क्या बुरा है? आप बताइए तो क्या बुरा है? अरे आपका रिचुअल पूजा करने का क्या है, उससे हमको थोड़े मतलब है। मतलब है दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। उनका अडॉप्ट करने का तरीका ये अलग है, इनहेरिटेंस अलग है, मैरिज अलग है। व्हाट इज दिस? यू सी, पॉलीगैमी और पॉलिंड्री चल रहा है ना। अरे कहीं ना कहीं, और ये भारतीय संविधान में है। लोग बोलते हैं संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। अभी जैसा फ्रीडम है, अभी जैसा फ्रीडम तो कभी नहीं हुआ। जिसको मन कर रहा वही बयानबाजी कर रहा है। फ्रीडम, रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम आप देखे कहाँ है मिसेस गांधी के समय में? मिसेस गांधी के समय में कोड़ा मारकर जेल में अंदर किया जाता था। अरे भाई, तो आप इस 3 प्रोविजन को आप लिखेंगे ना, इस बात को लिखेंगे, क्योंकि पैसेज में मेरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। यस, यू मस्ट टेल मी। जहां पर बोलोगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। योर अंडरस्टैंडिंग इज माई प्राइम कंसर्न। तो ये आपको लिख दीजिए, दी अफोरसेड 3 प्रोविजंस, यही हम बोल रहे हैं। अफोरसेड मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है, अफोरसेड 3 प्रोविजंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है उसको नोट कीजिए। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ में एक है सायरा बानो केस 2017। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, तलाके बिद्दत से रिलेटेड है सायरा बानो केस 2017। दूसरा है ना मोहम्मद अहमद खान साहबानो बेगम केस, मोहम्मद अहमद खान साहबानो, है ना, मोहम्मद अहमद खान साहबानो बेगम केस, है ना, 1985।
और तीसरा जो केस है वो है सरला मुदगल केस। बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वही हम नोट करवा रहे हैं। सरला, SARLA, सरला मुदगल केस, सरला मुदगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1995। you see. यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1995 you see। और लास्ट पॉइंट दीजिए जो रिलेटेड है उत्तराखंड से, तो आप लिखिए उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट which passed the uniform civil code law, which passed the uniform civil code law। अब पैसेज पर जो क्वेश्चन बने, पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ, है ना, and it is signed by the governor and sent to the president, for approval। This law, आप लिख दीजिए, this law is based on the draft, है ना, this law is based on the draft submitted by a high level committee, you see, a high level committee formed by the Uttarakhand government। उत्तराखंड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर कौन है? यस, उत्तराखंड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है ना, पुष्कर सिंह धामी। आप साइड में लिखना चाहेंगे तो लिख दें पुष्कर सिंह धामी। देखिए आपको सब चीज ध्यान देना होगा, 12th क्लास का एग्जाम है। धामी, DHAMI, पुष्कर सिंह धामी, है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था कमिटी द्वारा, तो उसके अंडर द चेयरमैन, उसके चेयरमैन थे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज का नाम लिखिए, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वैसे एक नोट में ये भी लिख दीजिए, है ना, हिस्टोरिकली दिस, I mean यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रेवलेंट हिस्टोरिकली इन गोवा ऑल्सो, हिस्टोरिकली इन गोवा। लेकिन पहली दफे, है ना, लेजिस्लेचर द्वारा जो पास हुआ है उसमें फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, जो आपके पैसेज पर क्वेश्चन बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू सी माई फ्रेंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी, यू आर, समझ रहे हो मेरी बात को? You see, I am taking a strain so as to make you understand। तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा, तुमको बोलना पड़ेगा सर इट इज कंप्लीटली ओके। When I say you, I mean are you getting my point? तो तुमको जवाब क्या देना होगा? Yes sir, I got it। अब पैसेज बनेगा, आई मीन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट वालों के लिए जो पैसेज बनेगा, तो नेचुरली हम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। पैसेज जनरल देंगे, उसमें कुछ हिडन रहेगा, कुछ हिडन रहता है, हिडन, यू अंडरस्टैंड। पैसेज में सब चीज आंसर नहीं रहेगा, कुछ हिडन रहेगा। आपको, आपका अगर बैकग्राउंड है और हिडन चीज से निकाल लीजिएगा।
यहाँ पर लिख लीजिए नोट में, ट्राइबल्स टू रिमेन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस लॉ, ट्राइबल्स टू रिमेन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस लॉ, आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस लॉ, यू सी. यस, 1 मिनट रिव्यू कीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे, 1 मिनट रिव्यू कीजिए. यस, यू हैव अ क्वेरी, अनुज चंद्रा, यू हैव अ क्वेरी. यस, यू कैन आस्क मी. यस, यू हैव अ क्वेरी, प्लीज आस्क मी. अनुज चंद्रा, आर यू हियर? अनुज चंद्रा, आर यू हियर? 50 दफे बोलते हैं तो भी नहीं सुनता. Anuj Chandra, are you here? You have a query, please ask me the query. प्रॉम्प्टनेस नहीं है आज के बच्चों पर. सी, आई एम आस्किंग क्या क्वेरी है तो बताना ना चाहिए. यस, व्हाट इज द क्वेरी? यस. इन सीरियसनेस कहाँ है पढ़ाई में? पढ़ाई में सीरियसनेस कहाँ है? गार्जियन आपको मेहनत करके टाइम, मनी एंड एनर्जी लगा रहा है और आप गंभीर नहीं है अपने पढ़ाई के प्रति. यस, यू हैव अ क्वेरी. यस, एनीबॉडी? आई मीन निशांत. यस. नहीं, अभी ये जो लॉ बना है इसलिए कि ट्राइबल्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका वेरियस कल्चर और वेरियस आपको संस्कृति और वेरियस, इसलिए उनको अभी अलग रखा गया. ये आप जाइएगा तो जो ट्राइबल लैंड्स है उसमें देखिएगा, ट्राइबल लैंड्स में बहुत तरह का, आपको बहुत तरह का कल्चरल ट्रेट्स है. एक फिल्म आई थी है ना, स्टोन, आई मीन स्टोन मर्डर. उसमें एक ट्राइबल था जो करीब करीब उसको, आई मीन है ना, ट्राइबल, आई मीन जो है ना डॉक्टर था, जो सो कॉल्ड डॉक्टर होता है ट्राइबल में, जानते हैं तरह तरह का डॉक्टर होता है. उसने कह दिया कि 9 आदमी को जान से मार दोगे तो तुम्हारा सब बीमारी दूर हो जाएगा. ऐसे होता है कहीं? उसने 8 को मार दिया, 9 में पकड़ा गया. तो आप ट्राइबल्स का जो वे ऑफ लाइफ है उसमें बहुत कंट्रडिक्शंस है. तो अचानक हर चीज नहीं हो सकता है. आप देखिए, समझिए. नाउ इफ यू कम टू द नेक्स्ट आइटम, देखिए नेक्स्ट आइटम में 3 आइटम है, 4, 5 और 6. यस, देखिए नेक्स्ट आइटम, अपना बुक, अपना लीफलेट देखिए. नेक्स्ट आइटम में 4, 5 और 6 है, जिसको हमने घेर दिया. These are the 3 miscellaneous short issues. ये miscellaneous short issues है. अब देखिए उसमें लिखा होगा, These are the 3 miscellaneous short issues. जिसमें पहला है, the first one is India's first constitution literate district. नेचुरली क्वेश्चन बनेगा, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट. इसमें 2 पॉइंट नोट कीजिए, इसमें 2 पॉइंट नोट कीजिए. नंबर 1, इन जनवरी 2023 है ना, कोलम, KOLLAM, कोलम ब्रैकेट में केरला, कोलम ब्रैकेट में केरला हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट.
कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ना इन द कंट्री। यस, नाव्या सिंह, यू हैव कम लेट। नाव्या सिंह, you have come late. Don't take the class so easily. क्लास को इतना इजीली मत लीजिए, है ना। और सेकेंड पॉइंट है अराउंड 16.3 लाख पीपल, 16.3 I mean around 16.3 lakhs people in the district, around 16.3 lakh people in the district above the age of 10, above the 10 वर्ष के ऊपर के जो एज हैं वो लिटरेट हैं। और दुर्भाग्यवश हम जो लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं हम लिटरेट नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे पूछ दिया जाएगा, है ना, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आप नहीं जानते होंगे। यस माय फ्रेंड, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधान तो आप पढ़े होंगे, संविधानवाद क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो जब संविधान पढ़ेंगे मौका अगर मिला तो वी विल सी, अदरवाइज संविधान मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, मानी एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यू सी, सरकार के 3 अंग है ना, एक है जुडिशियरी, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर। तो दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वैसे ही ना आप फंक्शन कीजिएगा, अपने मन से कीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखिए, लिटरेसी देखिए जरा सा, 10 वर्ष के ऊपर 16.3 लाख पीपल बोलता कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है। आप लिखिए above the age of 10 have been educated, above the age of 10 have been educated, and on various aspects of the constitution, on various aspects of the constitution। तो मिसलेनियस जो टॉपिक है उस मिसलेनियस टॉपिक में एक टॉपिक है, एक ये है टॉपिक। दूसरा टॉपिक लिखिए, केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट। आप नोट कीजिए, केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स। रोबोटिक, ROBO है ना, TIC, रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल्स। मैनहोल्स देखे हैं रास्ता में, मैनहोल्स देखे हैं, है ना, उसमें गिरता भी है आदमी, हाँ गिरता है। अब मैनहोल्स में अगर स्कैवेंजर को घुसा दिया जाए और कहा जाए कि उसको साफ कीजिए, तो ये हीनियस क्राइम नहीं हुआ? 5 मिनट जिंदा रहेगा उसमें। अरे दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकली, आई मीन एक मैनुअल स्कैवेंजर होता था पहले, अब तो कम हो गया है। जो मैला ढोता था, पहले मैला ढोया जाता था, सेप्टिक टॉयलेट नहीं था, मैला ढोया जाता था। जस्ट इट इज एन ऑफेंस, यू सी, अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एन ऑफेंस। अब मैनहोल्स में आप, है ना, जो महादलित हैं उनको घुसा दीजिए, तो आप जस्ट इमेजिन उस गैस को बर्दाश्त कर पाएगा?
मर गया बहुत लोग। केरला हैज द क्रेडिट, इसलिए आप लिखिए ऑन February 24, 2023, February 24, 2023, the Kerala government launched, आप लिख दें, ये एवरी डे ये शीट लेके आइएगा। The Kerala government has launched robotic scavenger, robotic scavenger, है ना, नेम्ड, नाम लिखिए बंदी कूट, इसका नाम है BANDI, बंदी कूट, COOT, बंदी कूट, टू क्लीन सीवेजेस, टू क्लीन सीवेजेस। और लास्ट पॉइंट लिखिए बंदी कूट इज इंडक्टेड अंडर द, लास्ट पॉइंट लिखिए बंदी कूट इज इंडक्टेड अंडर द गुरुवायूर, गुरुवायूर, GURUVAYUR, गुरुवायूर, गुरुवायूर सीवरेज प्रोजेक्ट, सीवरेज प्रोजेक्ट बाय केरल वाटर अथॉरिटी, by Kerala Water Authority, as a part of the 100-day action plan, as a part of the 100-day action plan of the state government, 100-day action plan of the state government, you see. तो आपका अब जो समझ लीजिए, है ना, एक आध हफ्ता जो हम लेंगे, है ना, उसमें आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, यू सी। लेकिन इस पर पैसेज बनना शुरू हो गया, सो यू हैव टू फेस द पैसेज। और मैं आई मीन जो लॉ एंट्रेंस में भी दे रहे हैं उनको भी कहेंगे पैसेज को फेस कीजिए आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली पकड़ लेंगे, पैसेज को पकड़ने से आई मीन एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा। Yes, is it clear? Yes, is it clear? Everybody, is it clear? Any problem? Yes, is it clear? Thank you. कल 3:30 बजे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और करीब 10-15 पर ले जाएंगे इसको। देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि एक चीज का संबंध दूसरे चीज से भी रहता है इसमें। जब पैसेज बनेगा क्वेश्चन आंसर, आप देखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको साइड से लड़ जाएगा, जो आप यहाँ क्लास में पढ़े हैं। कैसा रहा है? कैसा रहा निशान? ठीक था? थैंक यू। अभी कौन सा क्लास है आप लोग का? मैथ्स है।